हर कहानी में राम और रावण होता है। इस कहानी में हमने सिर्फ रावण का नाम लिया, राम का नाम क्यों भूल गए? ये पाकिस्तानियों ने किया था, आईएसआई ने किया था, आतंकवादियों ने किया था, हमने खुद किया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अगर जय है तो उल्टा तो हार होता है, लेकिन ये कहावत ये क्यों है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो? The next day of 26/11, most popular English newspaper of this country had this headline: "It's war." If 10 guys with a gun and a few grenades in your bags are enough to get this headline, why does anyone need army, navy, air force? Damn it! क्या कर रहे हो यार? 10 आतंकवादी यहाँ पर आए और 2.25 करोड़ की मुंबई नपुंसक थी जब तक आर्मी नहीं आई। That they were too good, too strong, too intelligent, and Indians, भारतीय लोग, were weak, meek, and cowards is the perception they wanted. We gave it to them. But was it true? मौत के उस साय में जो वो आतंकवादी यहाँ देने आए थे, मेरे देश की साधारण नारियों ने 2 जीवन को जन्म दे दिया। This is what an ordinary भारतीय नारी is. This is what every ordinary भारतीय is. आपके लिए who has been your mentor? My mentor has been death. The bullet had gone, tore my throat, the jaw came off from here. I knew it's over. मैं मृत्यु के मार्ग पे चल पड़ा हूँ। But then I felt कि someone is picking me up, यहाँ हाथ डाल के, oh मैं कहा यार रुक जा थोड़ा सा। What is your thought when you're killing someone? कि there is no bigger moment in my life when I could stand and look into the eyes of a dying terrorist. Your journey is something that literally has left me with goosebumps. But more than that, I think what I want to learn from you are your perspectives. Aapki journey with the army, with your injury, how you've recovered from it. But more than that, इससे जो आपको reality check मिला है life में, Yes, I yes. think that is very, very precious. 26/11 में there was a terrorist attack. There was a narrative that was created around, terrorists coming in and, holding our great country hostage. And एक डर हम सब में एक बिठा के चले Before I गए come to थे। 26/11, I'll tell you what is the experience that I went through that I could analyze जी। this. Is that in Kashmir, there is one video of mine in which I am in conversation with a terrorist. Okay. And that conversation I used to have it for hours and hours and पता नहीं कितने दिन मैंने करे होंगे, because it was my firm belief. The kid who joined the army, the young man who joined the army, had a very firm belief that everybody in this world can be convinced to be living in peace. Okay. Right? So I always used to avoid conflicts in my life. I still do that even today. So मेरे साथ में रहने वाले लोग बोलते भी हैं, आप क्यों, अरे पार्किंग अपनी थी वो खड़ा कर दिया। मैंने जाने देना, कल निकाल लेगा गाड़ी, क्यों लड़ना। आई ऑलवेज अवॉइड ए कॉन्फ्लिक्ट इवन टुडे। एंड अगर कहीं कुछ गर्मा गर्मी हो रही है तो आई नहीं छोड़ना है, सुन 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 सुन, आई विल ट्राई। सो आई यूज टू डू दैट अर्लियर ऑल्सो, एंड हैड द फर्म कन्विक्शन कि एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन बी कन्विंस्ड टू लिव इन पीस इफ एट ऑल I was there in that situation, whether the confrontation was happening directly with me or with someone else, but still, despite trying to, convince that guy, the physical fight happened, I always felt it is my failure. So you would actually go and talk to terrorists. Terrorist means not actually talk. तो एक आधा जो पकड़े जाते हैं तो वो तो कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी, बिकॉज पकड़ा गया, यू गो टू अगेन सेंड इट अहेड, बट उनसे भी करता था मैं। एंड देर वर टेररिस्ट वर एन रेडियो सेट, आई यूज टू टॉक टू द रेडियो सेट पे ना, उस पे फ्रीक्वेंसी पे देखता रहता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी सिंपली कीप लिसनिंग टू गेट सम इंटेलिजेंस। जी। So you keep listening to that हाँ, conversation. वो क्या बोल रहे कन्वर्सेशन। हैं, क्या बट एट सब टाइम्स है। यू नो कि ऐसी फालतू कर रहा है, मतलब देयर इज नथिंग इसमें वर्थवाइल, अब कुछ है नहीं, बोलना बोलना जो निकल गया है। तो देन आई यूज टू इंटरजेक्ट, भाई साथी सुन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्विच इट ऑफ, अरे ये तो फौजी सुन रहा था। बट उसमें भी कोई हुआ पहाड़ में बैठा बोर हो रहा है, वो भी टाइम नहीं पास हो रहा, कोई बैठा कहीं फंसा हुआ बोर हो रहा है, बोला ठीक है लेट्स स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन विद दिस तो गाय। वो फौजी से एक्चुअली बात करते हाँ, थे। दैट इज द माय कन्वर्सेशन विद द टेररिस्ट। तो बोला भाई क्यों लड़ रहे हैं यार हम, विद दैट सेम इंस्टिंक्ट कि यार वी कैन प्रिवेल अपॉन एवरीवन। तो मैंने कहा इसको मना ही लेता हूँ ना यार, लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्यों लड़ने हम लोग, आतंकवादी को समझा देते हैं।
So I used to keep doing it. My colleagues would say, साहब क्या कर रहे हो? वो समझेगा, आतंकवादी समझता है, ट्राई करते हैं यार। तो आप करते थे, आप बात करते हाँ थे हाँ कि हाँ, भैया मत अब यूट्यूब पे करो। सुनिएगा सारा मेरा कन्वर्सेशन, भाई क्यों लड़ वाह। रहे हैं यार, छोड़ देना यार, क्या फर्क है तेरे में मेरे में, ये वो, मैं, एक ही तो बात है यार, तुझे क्या चाहिए, सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। मैंने कहा यार यहाँ तो जमहूरियत है, तू आ जा मैदान में खड़ा हो जा, इंतखाबात होने वाले होंगे जब, तू खड़ा हो जाए यार, जनता अगर तेरे को चाहेगी तो आवाम चाहेगी तेरे को वोट देगी, तू जीत जाएगा, तू यहाँ वजीर आला बन जा बेटा, मैं सलूट मारूंगा यार, हिंदुस्तान में तो जमहूरियत है, जो मंत्री बनेगा हम तो सलूट मारेंगे यार, क्या लड़ाई है तेरी मेरी। जी जी। मैं इसको ये बोला था, वो बोला नहीं नहीं नहीं, तो मुझे मतलब सत्ता नहीं, मुझे इस्लाम चाहिए, तो ये वो, तो मैं करते करते ना, देन वन फाइन डे आई रियलाइज्ड कि यार इसको कोई नहीं समझा सकता, आई एम डीलिंग विद डिफरेंट एनिमल। जो मेरा पहले का फर्म बिलीव था कि सबको समझाया जा सकता है, इट इज जस्ट द राइट मैन हैज टू डू इट, यहां मुझे एक चीज समझ में आई कि भाई साक्षात बुद्ध और नानक नहीं समझा सकते इसको, Okay. आई एम डीलिंग विद डिफरेंट एनिमल। देन आई रिकलेक्टेड, या मैं कहा कृष्ण भी तो नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को, तो मैं क्या ट्राई कर रहा हूं यहाँ। राम ने भी ट्राई किया था मैसेंजर्स के थ्रू वेरियस मींस की, भाई रावण यार नहीं जी लड़ते ना, जी। वाई शुड फाइटिंग, नहीं हो पाया ना। तो मैंने कहा व्हाट एम आई ट्राइंग यार। देन नॉट एग्जैक्टली द वे अर्जुन एंड कृष्ण वाला, बट देन आई गॉट दैट नॉलेज इन मी, जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि शस्त्र उठा प्रहार कर, तो क्या बात कर रहे थे। देन दैट डॉन्ड ऑन मी कि मनोज कुमार क्या कर रहा है यार, हो गया बस, किल हिम। अब पहले बट भी यू लड़ते थे यू हम। काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि नहीं, इस पे हाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है नहीं क्या है कि नहीं है, वो। हाँ। देन आई न्यू कि दिस इज यू नॉट, तो इसीलिए फिर मुझे जो है कि इसको पहले भी ऑपरेशन में जाते थे, ऑर्डर पे जाते थे। जी नाउ आई वाज डेस्परेट, नाउ आई डेस्परेट फॉर ब्लड, जो कि पहले मुझे लगता था क्यों वायलेंस नहीं, क्या नहीं, अब खून बहाना चाहता था, मैं डेस्परेटली बहाना चाहता था। बिकॉज यू अंडरस्टूड कि ये हाँ, तो मानेंगे नहीं किसी मानेंगे भी। नहीं, मानेंगे वो ना माने, यही सही है, यही सत्य है, ही नीड्स टू बी किल्ड। देखिए एक कहावत है ना, धर्म की जय हो, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, अधर्म की हार हो। अधर्म की हार नहीं है, अधर्म का नाश है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यू आर राइट। अगर जय है तो उल्टा तो हार होता है, लेकिन ये कहावत, ये क्यों है कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, क्योंकि अधर्म को पराजित नहीं कर सकते आप, क्योंकि पराजित होने के बाद भी है तो अधर्मी। जी भाई आप और मैं स्पोर्ट खेल रहे हैं, आपने मुझे हरा दिया, मनोज तो है ही, राइट। हार गया मनोज, लेकिन है तो, खत्म थोड़े बट यू हुआ। नीड टू डिस्ट्रॉय। यस, ये मनोज फिर कल खेलेगा आपसे। अगर परमानेंट चाहते हो कि मैं कभी नहीं आप वापस आ पाऊं, यू विल हैव टू किल मी। आज पराजित हुआ, मैं फिर कल आऊंगा। तो इसलिए अधर्म की हार नहीं है, जबकि उसका उल्टा होता है, जय का पराजय होता है। लेकिन इस लोकोक्ति, ये इस कहावत में, ये कभी किसी ने विचार अगर करें, जो सब लोग जानते हैं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो अधर्म का ब्यूटीफुल। नाश ही होना चाहिए। सो यू बिलीव दैट टेररिज्म और ये जो टेररिस्ट थे आपकी बातों के बाद दे नीडेड टू बी Killed, डिस्ट्रॉयड, killed. दे That is नीडेड टू one बी। part. राइट। Now, second is I kept on doing this, and then I also started engaging with people. I started talking to them also, and whatever, वो कभी लंबा हो जाएगा, तो I'm not going to do it. But I started doing it, and uh, incidentally, like that I'm a gallantry awardee and all those things. So basically, so because my men were too good, and we used to kill a lot of terrorists. सॉरी, Normal है, कोई दिक्कत नहीं. We used to kill. My men were very good, so we used to kill a lot of terrorists. हैव यू आल्सो किल्ड पीपल? Yes, yes. एंड इज इट You, मतलब, बट व्हेन यू नो इट्स राइट तो उसका क्या मतलब, व्हाट इज योर थॉट व्हेन यू आर किलिंग समवन? नहीं नहीं, इट्स वेरी गुड, धर्म के काम कर रहे हो, इससे बड़ा तो कोई यज्ञ नहीं है, ब्यूटीफुल। इससे बड़ा तो कोई यज्ञ नहीं है। आई सेड इट ऑन, अगेन यू कैन चेक इट ऑन माय सोशल मीडिया, आई सेड दिस ऑन नेशनल टेलीविजन, कि देयर इज नो बिगर मोमेंट इन माय लाइफ when I could stand and look into the eyes of a dying terrorist. And the reason for it was not that I'm sadistic. I don't want killing of the body. जी मैं अधर्म का नाश कर रहा हूँ। एंड इन द लास्ट डाइंग मोमेंट्स, जो मेरे साथ हो रहा था, जब मैं लास्ट मोमेंट में था, सब सत्य दिखता है, तब क्लियर हो जाता है ना। इन द लास्ट डाइंग मोमेंट्स आई यूज्ड टू लुक इनटू द आईज, बिकॉज आई न्यू दैट नाउ ही नोज ही वाज रॉन्ग।
मृत्यु के टाइम में सबको रियलाइज हो जाता है क्या गलत है, पूरी जिंदगी नहीं माना ना. नाउ आई कुड सी इन हिज आईज दैट रिग्रेट, दैट ही वाज रॉन्ग, ऑल दैट ही बिलीव्ड एंटायर लाइफ, पूरी मानवता खत्म कर दिया इस विश्वास के कारण. आज उसको समझ में आ रहा है कि मैं गलत था, बट नाउ ही इज टू लेट दैट ही कैन कम बैक एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड. सो दैट इज वॉट इट इज. सो वॉट आई एम टेलिंग इज, हाँ द पॉइंट इज, वो 26/11 के पहले ये समझाना था. सो वहां पर कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा लोग काम करते हैं तो टेररिस्ट ट्राई टू स्केयर देम, डरता कोई आर्मी अफसर नहीं है, तो दे वुड सेंड मैसेजेस. और मेरे जैसे लोग जो रेडियो पर लगातार बात करने के आदि होते, दे आल्सो नो कि अब ये तो बात करता है, तो वो भी बोर हो रहा था, वो भी कभी कभी आता, भाई आजा फौजी. देन से स्टार्टेड टेलिंग मी कि कैप्टन, मतलब बाकियों को जब डराते हैं तो डराते हैं कि यार तू ऐसे मत कर, हम तूने इतने हमारे मार दिए, हम भी ये कर लेंगे वो कर वाली लेंगे, सो दैट यू गेट स्कैर्ड एंड ऑल, कोई डरता नहीं. बट मेरे को बोलते थे कैप्टन तेरे को जितने मारने मार ले, तू बात करना बंद कर. They were more scared of the words that came from my mouth than the bullets came from the barrel of our guns. That's the time we understood that this is a battle of perception. Why I wanted you to explain this before coming to 2611. ये सोच की लड़ाई है, ये धारणा की लड़ाई है. When I was talking, I was attacking perceptions, and they were scared of that. Now they were feeling scared. कि he's changing minds. तब मैं समझ में आया कि this is a battle of perception. Now coming to that 2611, when that happened, I knew कि this is a battle of perception, and unfortunately I was annoyed and angry, not at them, at our own perception building industry. But firstly, that nobody is getting it, and secondly, we are giving that the perception. They not earned it. उनको पता था कि हम ये बस ट्रिगर करेंगे ना, वो होता ना एक कहीं कहीं वीडियो में देखते ना, एक गड्डी हिलाओ तो टर सारा गिरता चला जाता है, जी तो उनको पता था हम ये करेंगे, बाकी सारे हम जैसे चाहते हैं वैसे ही चलेंगे ये. जी So whatever entire perception building industry, by that I mean the media, the films, the televisions, the documentaries, newspaper, books, magazines, everything, whatever has been produced by us, most of it, whether on screen, whether on print, is exactly the way they want it, and we're still doing it. creating that perception of fear of the That fact that we are हम too good. weak हैं. That we are too good. That's what I'm telling. That we are too good. For example, I'll tell you. Okay, I'll go back from that place. आपने डायलॉग सुना, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट. रिजवान खान was his name. He said so because he was being made a victim of a perception about terrorist and terrorism, and he wanted people not to believe that perception. That was a fiction. Now the true story is 2611. Ismail Khan was the leader of those 10 terrorists. He picks Kasab and comes to CSMT Mumbai railway station. He throws grenades, fires bullets. The initial reaction of the people was of disbelief. A lot of people thought it was some kind of a gang war. The terrorists did not like this. They go on a rampage. They go on a rampage because the message now that Ismail Khan wanted to give was very clear. My name is Khan, and yes, I am a terrorist. Because they knew that once people believe this, then whatever will happen beyond this will exactly happen the way we have programmed the entire society, including the media and the films and the televisions and the books and the magazines. Everybody will start painting exactly what we want. So if we think that they come here to kill people, no. They come here to build a perception. Killing is a means to build that perception. But ultimately, perception तो हम ही बना रहे हैं ना. The next day of 2611, there was the most popular English newspaper of this country had this headline. It's war. And sitting somewhere in Northeast, I was posted there and I was wondering, if 10 guys with a gun and a few grenades in your bags are enough to get this headline, why does anyone need Army, Navy, Air Force? Damn it, क्या कर रहे हो यार? Another newspaper, English newspaper, front page, आप Google करके देख लो. जी
और ये सारे फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, नहीं तो मैं दिखा दूंगा आपको। आई डोंट वांट टू नेम दोज न्यूज़पेपर्स। फ्रंट पेज टॉप हेडलाइन, वन वर्ड, fear. The size of those words, font size is bigger than the name of the newspaper. And below that, a picture of an ordinary Bharatiya's frightened eyes. Exactly the perception the terrorists wanted. Exactly what they wanted. They must have got up there and given them a standing ovation. Come on, man. Fantastic, man. डराओ अपने देश के लोगों को तुम। यही तो हम चाहते हैं। हम चाहते थे कि वो विश्वास दिला दें कि 10 आतंकवादी यहां पर आए और 1.25 करोड़ की मुंबई नपुंसक थी जब तक आर्मी नहीं आई। That they were too good, too strong, too intelligent. And Indians, Bharatiya log, they were weak, meek, and cowards is the perception they wanted. We gave it to them. But was it true? I'll give you a few examples. Kama Hospital, Child and Women Government Hospital. People from lower income strata of the people, they come there. Most of them delivery cases. After the CST railway station, they come into that hospital. The sisters on the staff, they look at it from the top floor, whatever higher floor. After that, they switch off all the lights, leaving the critical equipments on. They close all the doors, put whatever they could get to block those doors. They shift the critical patients into safe zones. Rest of the patients, they tell them to get down from the bed and sleep on the floor, because they know that even if they are managed to come in, they will be spraying bullets on the bed. There were a lot of babies all around. They told the mothers to start suckling those babies so that they don't make noise. And the terrorists were moving from one floor to another, still not able to get in. We told them too intelligent. भारत का चवन्नी छाप चोर होता ना, वो 5 मिनट में घुस जाएगा, आप बताओ. And we've given them this. And in this, all this happening, there were 2 ladies who were in labor pain. Now, the labor room was on a different floor. These people are staff, and the ladies, they take that risk, dodge them, and they move those 2 ladies into the labor room. मौत के उस साय में जब वो आतंकवादी यहां देने आए थे, मेरे देश की साधारण नारियों ने 2 जीवन को जन्म दे दिया. Come on, man. Please feel the pride that the perception building industry failed to give you. This is what an ordinary Bharatiya Nari is. This is what every ordinary Bharatiya is. This is how good we are. Usi hospital mein, there's another guy, another person, old man. His name is Harish Chandra Shivardhankar. He was not part of that hospital. He was a government employee wanting to go home. CSMT railway station was under siege. So by incidentally, he thinks that the hospital is a safer place. He goes inside. He goes inside and he straight bumps into these 2 terrorists. He knows death is certain. Once you accept it, you become super powerful. He accepts it. Ab the death certain hai. Once that happens, there is no bigger weapon then. You got the greatest weapon in the world once you accept that death is certain. इससे बड़ा हथियार कुछ नहीं है आपके पास. इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है. He knows now death is certain. What does he do? He decides to give him a fight. He gives one of them a kick in the groin. He goes back reeling. AK-47 छूट गया उसका. Then another guy comes and catches him from the back, puts a knife on his neck. He still has an office bag. He whacks on his face. That guy goes back again. Both these guys get up and start running. Wow. And his throat has been slit. As they run, they start firing. He is shot. He is lying on the ground, bleeding profusely from his neck and the bullet wounds. And those 2 terrorists didn't have the guts and the gumption to come and pick up again, take a fight again and face that old man lying on the ground who has been slit from his throat and is bleeding from his bullet wounds. That is how those guys were brave. That is how good they were. That is how an ordinary Bharatiya is. Is the perception that the perception building industry failed to give you. Every one of you, please realize this is what you are. ये चेतना जागृत कीजिए. पूरे देश में हर एक व्यक्ति को महसूस होना चाहिए. ये आज की कहानी नहीं है. कई 100 सालों से हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने बारे में हीन भावना से शिकार हो जाएं. लोग बात करते हैं कि पिछले 400 साल का इतिहास, 300 साल का इतिहास गलत बताया गया. हमारे जीवन काल की घटना बता रहा हूं मैं, हमें गलत बता दिया भाई. इट ऑल हैपेंड इन फ्रंट ऑफ अस. ताज की अगर हम स्टोरी बात करें, तो Exactly. ताज एम्प्लॉइज, Exactly. दे वो स्टेलर. उनके ऊपर हार्वर्ड ने केस स्टडी लिखी है कि उनके एम्प्लॉइज ने, दे वेंट आउट ऑफ देयर वे Yes. टू टेक केयर ऑफ द गेस्ट, गेट एवरीवन आउट, हैंडल द कमांडोज. Yes. बट फिर भी हम एक फेयर का परसेप्शन लेके
यस उसको यस आई गिव यू अनदर अपने एग्जांपल, इसी पे बोलता हूँ मैं। अभी पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, यू किसी का भी नाम ले लीजिए कसाब, देश में लगभग सब जानते हैं, या खाली फोटो दिखा दीजिए सब पहचान जाएंगे, ये भैया किसकी फोटो। मैं बिहार में जाके गांव में पूछूं, भाई पहचानते हो उसको? हाँ भैया पहचानते हैं, तो कसाब है। अभी यहाँ पर मुंबई में बैठे हम, मैं और आपकी किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल मैं कई जगह पूछ चुका हूँ, सडनली ड्रॉप करता हूँ ये क्वेश्चन, कसाब को किसने पकड़ा? पीपल स्टार्ट ड्रॉइंग ब्लैंक। हर कहानी में राम और रावण होता है, इस कहानी में हमने सिर्फ रावण का नाम लिया, राम का नाम क्यों भूल गए? ये पाकिस्तानियों ने किया था, आईएसआई ने किया था, आतंकवादियों ने किया था, हमने खुद किया, खुद किया हमने। अब याद कीजिए, आप पिछले अबाउट 10-15 ईयर्स जो भी आपको याद है, जितने भी मेजर टेररिस्ट अटैक दुनिया में हुए, फिदाइन अटैक, 9/11 हुए, पेरिस अटैक हुए, इतने जो भी कुछ भी आपको याद आ रहा है, जस्ट गो थ्रू देम एंड डू यू रिमेंबर दैट किसी भी स्पेशल फोर्सेस, चाहे वो कहीं भी दुनिया का कोई भी एलिट कमांडो हो, किसी ने जिंदा फिदाइन पकड़ा है? मेरे देश के साधारण बीट कांस्टेबल ने पकड़ा है भाई, उस आदमी का नाम तुकाराम ओमले था। शुड नॉट वी हैव गॉन अराउंड द वर्ल्ड बीटिंग आवर चेस्ट विद प्राइड दैट दिस इज व्हाट एन ऑर्डिनरी भारतीय इज एंड बिल्ड अ बेटर परसेप्शन ऑफ एन ऑर्डिनरी भारतीय एंड भारत? व्हाई डिड वी लूज दिस अपॉर्चुनिटी? कौन सी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं हम लोग? मैं इतिहास 400 साल की बात नहीं कर रहा हूं, आज का बात कर रहा हूं। And Divya, I'm not telling you stories which you, I'm not, the stories that I'm telling you are not new. The perception that I'm giving you is new. हमने उसको हम हमें दूसरी तरफ से देख रहे हैं हम लाइक व्हाट यू आर सेइंग वी जिस ऑलवेज जस्ट मैं सीन इट भारत की फ्रॉम तरफ से देख रहा हूं, जी भारत की तरफ दुर्भाग्यवश हमारी पूरी जी परसेप्शन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान की तरफ से दिखाती है। जी आई एम पुटिंग इट एज ब्लंटली एज दैट। वी लाइक बिलीविंग द वर्स्ट ऑफ एवरीथिंग Yes. राइट हम नहीं, दे आर मेकिंग सोच अस बिलीव ना। जी ये देखो, साधारण व्यक्ति क्या है, उसको तो जो दिखाया जा रहा है ना, वो ऐसा है ना कि वो तो उसी को मानता है ना। भाई टीवी है यार, इतना बड़ा जर्नलिस्ट बोल रहा है भाई, इतने बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं भाई, इतने बड़े डायरेक्टर ने कहानी लिखी है भाई, मैं तो छोटा आदमी हूं, रिक्शा चलाता हूं भाई, तो ये गलत कैसे हो सकते हैं? आई एम नॉट ब्लेमिंग दोज गाइज। आप देखिए, मैंने इसी पे सिर्फ 10 मिनट का टेड टॉक दिया था, अगेन दैट इज अगेन ऑन यूट्यूब। मैं सिर्फ 18 स्पीकर थे, 10 मिनट का मैंने टेड टॉक दिया, बाहर आया था, देयर किड्स हु सेड दैट वी वांट टू गेट अप एंड फाइट। अगर मैं सिर्फ 10 मिनट के टेड टॉक जिसमें 18 स्पीकर में से एक हूं मैं, अगर बच्चे बोल सकते हैं, महिलाएं वर टेलिंग दैट नाउ वी आर फीलिंग टू पावरफुल, आपके पास तो इतना पैराफिनेलिया है भाई, आग लगा दो इस देश में साहस का, चेतना का। एब्सोल्युटली एंड ईच वन ऑफ अस नीड्स टू रियलाइज कि हमारे में ही ये सारी पावर है एंड आपके मीडियम के थ्रू एक और बात बता रहा हूं मैं, इसका मेरे पास पूरा प्लान लेके मैं घूम रहा हूं 6 साल से, फॉर सम फिल्म प्रोड्यूसर टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आई डू दिस एंड आई डू दिस। ब्यूटीफुल कौन करेगा, कौन मेरे साथ आएगा पता नहीं, बट मैं ये करूंगा। एक और बात मैं बताता हूं आपको, ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, आई डू नॉट नो हु इज गोइंग टू लाइक दिस, बट आई नो फॉर श्योर हु इज नॉट गोइंग टू लाइक दिस। द टेरर मास्टर्स आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस। They would not like someone like me to succeed in dismantling the entire perception that they've built about themselves in Bharatiya. They would not like someone like me to succeed in making the people of this country feel confident and brave. They would not like anyone like me to succeed in कि मैं इस देश में चेतना का जगाएं लोगों में, बिकॉज दे फियर द fearless ordinary Bharatiya, fearless you, and each and every Bharatiya. They fear those guys. fear is what they are using to control Yes, fear is what they're using to sit where they are sitting exactly. नहीं तो वो मतलब वो 10 हमारे मिलियंस के बीच में देयर इज नो कंपैरिजन अब वो कंपैरिजन, मैं एक कंपैरिजन देता हूं आपको, वो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, मैं एक कंपैरिजन देता हूं। लेट अस टेक दिस बैटल, कसाब एंड तुकाराम ओमले, राइट? तुकाराम ओमले ने कसाब को पकड़ा, मैंने बताया हु इज कसाब। कसाब चोजन वन फ्रॉम, जो उसको सेलेक्ट किया गया होगा, ट्रेन्ड टू बी अ हार्डकोर फिदाइन फॉर 2 years, given the best of the training. Prime of his youth, he was, I think, 21 years old, prime of his youth and physical health, right? Mentally, he was getting into this battle for past 2 years. Physically, he was into this battle for past many hours, since the time he shot the first bullet on CSMT railway station, right? जी And now, who is Tukaram Omble? Older than Kasab's father. Had a bit of punch, not in the best of physical health.
Mentally, he is still not into the battle because all that he knew is that these two terrorists in the car have been shot dead. Because कसाब के साथ इस्माइल खान बैठा था, उसके तो लगी थी, तो वो तो गिर ही गया था. एंड क्योंकि सामने से जब गोलियां चलती तो शीशे क्रैक से हो जाते हैं ना, यू कांट सी क्लियरली. तो कसाब ऑल्सो डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सो ही वाज आल्सो फीलिंग एज इफ ही इज डेड. ऐसे पड़ा हुआ था को ड्राइवर सीट पे. तो Tukaram Amble was moving ahead with the belief that I got to simply open the door of the car and pick up a dead body. He was not meant into the mindset that I'm going to have a battle there. ऐसा होता तो डंडा लेके थोड़े आगे बढ़ता. He was fully confident कि मुझे खोलना है और डेड बॉडी बाहर निकालनी है. So only when he opens the door and Kasab, who was lying like this, he picks up the gun and puts into his छाती पर लगा देता है and starts firing. That Tukaram knows I am into a battle. Comparison की बात करें, I am now giving some real comparison. Now Kasab is sitting on the co-driver seat firmly, नीचे बैठा हुआ है, holding the gun from where it's supposed to be held in the pistol grip and the butt grip. Tukaram Amble, bullets getting pumped into him, holding the weapon from the barrel. It must be red hot, let me tell you. एंड सिंपल फिजिक्स कहता है दो आदमी खींचतान कर रहे हैं तो नीचे वाला बंदा एडवांटेज में होता है, वो ऊपर बैठा है. विद ऑल दिस डिस्पैरिटी, Tukaram Amble manages to snatch the weapon from him. That is what is the power of an ordinary भारतीय विद्या. बोध करो इस बात का, ये शक्ति है असाधारण भारतीय की. This is how good we are. और हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते. और हम उनका नाम ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते हैं. एंड हमने कसब को एक बना दिया. वॉर हीरो बना दिया है. कौन बना? इसके लिए पाकिस्तानियों को दोष नहीं दे सकते आप. And we think that live telecast was the only thing they must have smiled at? No. They continue to smile at everything that we keep producing. Everything, every movie, every book, every newspaper, every debate that happens on televisions, they must be sitting there and smiling because you know what? I understand the terror leader's mind. So from that, I knew whenever I watched those books and movies, and मैं कहा यार हंसी रहा होगा वो. सही करो, डराओ अपने देशवासियों को, डरा दो भाई, बिल्कुल उनको. उन्हीं के नैरेटिव्स हम उठा के, Yes, that's what we are doing. No, beautiful. I think now I understand जब आप बोले कि the false narratives, I was like, what is the false narratives? But ये इतना narrative हमारे बना दिया, इतना incorporate कर दिया है, Yes. that we ourselves don't realize कि ये किसी और का narrative है, ये हमारी story थी और हमने किसको believe कर लिया है, हम उसको believe करना मैं कोई छोड़ नहीं, दिया है. मैं एक बार बताऊं, मैं जितनी कहानियां बताई कोई No, ओपन it's just ओपन है ना ये. It's just a different perspective on exactly मैंने where कुछ we are. कोई चीज ऐसी बताई, अरे सही है, तो घटना कहाँ तक किधर से निकाल के लाया हमें पता ही नहीं था. चाहे वो अस्पताल की कहानी हो, चाहे तुकाराम अम्बले की कहानी हो. They're all there, but यही है कि हमने उनकी देखा नहीं, सोचा नहीं, बात नहीं की. दूसरी तरफ से देख ही नहीं रहे, दूसरी तरफ से देख ही नहीं रहे हैं. हमारी तरफ से नहीं देख रहे, हम पाकिस्तानियों की तरफ से देख रहे, हम अपने दृष्टिकोण से देख ही नहीं रहे हर एक चीज को. Colonel Manoj, I think this is lovely, and I think if this is one perspective जो हम incorporate कर सकते हैं, especially for the youth of our country, एवरीबडी, हम इसको मानने लग जाएं, जानने लग जाएं यूथ तो मैं कि बताऊं आपको बहुत ज्यादा दायित्व है. आप एक यूथ, एक बात समझ लीजिए, जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यूथ आर, ऐसा परसेप्शन, अगेन वह रियलिटी है नहीं, बट अगेन यू नो ये भी परसेप्शन ही बनाया जा रहा है, यूथ आर रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ ए थिंग. तो जब कोई तोड़ फोड़, धरना, ये वो उल्टा सीधा काम करते हैं, तो मुझे बड़ा, अगेन क्या कहूँ, मुझे दया आती है जब ऐसे उन युवाओं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन युवाओं पे. क्योंकि भैया ऐसा है कि मान लीजिए हम एक ट्रेन में जा रहे हैं, लंबी यात्रा है, ठीक है ना, लंबी यात्रा है, 48 घंटे की यात्रा है, लेकिन एक सामने वाले पैसेंजर है, वो 2 स्टेशन बाद उतरने वाले हैं, और वो ट्रेन गंदा करने लग जाए, तो हम क्या बोलेंगे उनसे? अरे तुम उतर रहे हो यार, अपने को तो लंबा जाना है, तो क्यों खराब कर रहा है इसको भाई, है ना? तो आप मेरे से यंग हैं, अगर मैं यहां पर, तो इस देश के भविष्य पर, देश की मिट्टी पर, हवा पे, पानी पे, परिस्थिति को भोगना आपने ज्यादा है, मैंने ज्यादा है. Absolutely. तो अगर कुछ उल्टा सीधा मैं कर रहा हूं, तो इट इज यू शुड बी टेलिंग ना, सर आपने तो 15-20 साल में निकल जाना है, हमें तो रहना है, वहां पर 50-55 साल अभी बाकी है, क्या कर रहे हो? हेलो,
Please behave responsibly. live. I got to be living here. I got a longer journey to go in this the great nation called Bharat. Why are you destroying this? Why are you burning the buses? क्यों तोड़फोड़ मचा रहे हो आप लोग? ये बड़े यूथ ही मचा रहा है. मुझे बड़ा मूर्खता हंसी आती है भाई. तेरा ज्यादा है भाई ये. You have to be responsible for your country, your future, क्योंकि you're the one who gets to live You here see, I every get a day. decent patient, दिव्या. मैं बता रहा हूँ सपनों की बात करते हैं कि व्हाट इज ड्रीम एंड ऑल दोस थिंग्स. व्हेन आई वाज एज अ कैप्टन एंड ऑल, मेरा ड्रीम पता क्या होता था? रिटायरमेंट ड्रीम इज आई विल गो बैक टू माय विलेज. और इतना नहीं, आज जो मैं बात कर रहा हूँ इतना करूंगा ये नहीं जानता था, लेकिन मैं इतना जानता था कि मनोज कुमार बात करते हैं तो 4 लोग सुनते हैं. जी. इतना मैं तब भी जानता था. मैं गो बैक टू माई विलेज. एक बढ़िया घर, छोटा होगा लेकिन बाउंड्री बड़ी होगी. उसके अंदर किचन गार्डन होगा, 2-4 गायें होंगी और सामने बहुत स्पेस होगा, खाट पड़ी होंगी और चाय लस्सी ये सब का इंतजाम तगड़ा रखूंगा. और एक 4 पहिए की एक गाड़ी, बलेरो टाइप कोई भी एक रख लूंगा बस. और लोग आएंगे, मनोज बाबू बकैती करेंगे, दुनिया सुनेगी. माई ड्रीम रिटायरमेंट. नथिंग कैन स्टॉप मी. लोग बोलते हैं सपनों के पीछे भागो, यू मस्ट अचीव. मेरे को कौन रोक रहा है? उसमें मेरा कोई खर्चा ही नहीं है. जब मुंबई में पेंशन में सर्वाइव कर सकता हूं तो वो तो कर ही सकता हूं. Absolutely. तो मैं क्यों ये कर रहा हूं? और आप युवा बोलते मैं देश तोड़ूंगा. मैं चला जाता हूं यार, मेरे जैसा तो मैं आराम से जाके रह सकता हूं मैं अपने सपनों की जिंदगी. और युवा बोलता मैं जलाऊंगा बस, मैं शीशे फोड़ूंगा, मैं धरना करूंगा, मैं संसद नहीं चलने, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे. नहीं यार, ये पागल हो, तुम्हारा देश ज्यादा है भाई. आजकल अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम स्टोरीज, लिंक्डइन लीडरशिप, एवरीथिंग हैज टुडे बिकम अबाउट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. मैंने ये किया है, मैंने मैं पहाड़ पे चढ़ा हूँ, मैंने ट्रायथलॉन किया है. इट्स एवरीवनस टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स. लेकिन अब एक्चुअली इफ़ यू लुक एट ट्रू अचीवमेंट, ट्रू करेज, ये शायद उन मोमेंट्स में होता है जो सबको दिखते नहीं है. These are times that are not being celebrated. So, in your experience with the army, how much of courage is actually working as a team? How much of it is individual? How much of it is, क्या ये bravery और ये courage अपने लिए अलग होती है, और जब अपनी अपनी टीम को आप हैंडल कर रहे होते हो, is it different at that point of time? इसको थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाता हूँ बिफोर वी स्टार्ट गेटिंग इनटू अगेन दिस वर्ड्स करेज, लीडरशिप जी. एंड ऑल दोस थिंग्स, टीम बिल्डिंग. सो एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन बींग्स गॉट अ माइंड. तो ह्यूमंस जो हमारे पास माइंड आया, तो वी हैड वन कैपेबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड दैट लॉ एंड यूज दैट लॉ टू ग्रो. Right. ठीक है, वी हैड दैट कैपेबिलिटी बिकॉज वी हैड दैट. तो सम पीपल ग्रू. दैट इज व्हाट वर द ऋषिज एंड ऑल दोस थिंग्स यूजिंग द सेम लॉ, राइट. जैसे लॉ ऑफ नेचर को ही यूज करके एक रॉकेट ऊपर जाता है ना. जी. somebody has understood the science of gravity and everything, इन्हीं सबको यूज करके they do everything ना. बट उसी में से कुछ लोगों ने they started understanding and using their mind to break that law. So if this is the periphery, this is the boundary of that law. One thing is you can grow, another is you can try and come out of it. So this is what is right. When you break it, that is what is going as wrong. साधारण में हमारे भारत की भाषा में इसको कहते हैं धर्म में ऊपर उठना. और जब इस दायरे को आप तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं अधर्म हो रहा है. धर्म. अब आप कमिंग बैक टू करेज, टू सेट दिस राइट wrong is all that conflict that is there. The courage is your ability to deal with this wrong, to bring it right, or if it is not, to destroy it. But the wrong should not exist. That is the only one dimension which makes us different from every other living being. Right. Because बाकी लिविंग बींग में रॉन्ग हो नहीं सकता, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है. they are functioning exactly the way the cosmos has programmed them. हमको फ्रीडम दे दी गई है. You analyze yourself, understand, but some people start breaking it. हर युग में कोई ना कोई पाप लोग करते हैं, अधर्म करते हैं, रॉन्ग करते हैं, right? So the entire struggle is to destroy that. Human body, if you talk about health, our entire struggle is that there are things which are wrong. Right.
जो हमारी ह्यूमन साइंस, बॉडी के साइंस है, इसके हमारे कितने भी नैरेटिव बोलने से ये साइंस तो नहीं बदलने वाली. So we are eating something which is wrong. We are getting up at a time which is wrong. We are exercising or doing something which is wrong against the science. Right. The entire struggle to make ourselves healthy is to cut out those wrongs, correct those wrongs, bring it right. Cut out those wrongs, cut out those wrongs, bring it right. And then we become healthy. Similarly, the cosmos becomes healthy. यहाँ जो कुछ गलत हो रहा है उससे लड़ना है. That is what is courage. Simple. And that is what is success. सारी definition आपकी यहीं पर आएगी. That is what is success. That is what is courage. That is what is resilience. Everything is your ability to deal that wrong, correct it, bring it on the right course, or if it is not coming, demolish it. यही हमारे भारत में entire effort of every human being was to identify this. So there were masters in every generation who went out जी. into the forest and Himalayas. They left every dogma, every book, whatever they knew behind, and they went out to understand. Those are the Buddhas and the Nanaks and all those great masters and rishis. So they went and understand. It cannot come through a book. It never happened in our society that books were written. Now just keep reading this and keep following this. Despite the existence of all those books, in every generation there had to be a master who had to go and understand. Right? Agar वैसा होता, I'll give you an analogy of cricket. The best of the cricketers of the world can write a master book of cricket, Right. but you still need a coach. Right. Otherwise, you just give that book to a budding cricketer. This is what is the entire knowledge. अब किसी से बात ही नहीं करना तूने. इस बुक में कोई भाषा समझ में नहीं आया तो मैं क्लियर कर दूंगा. That's all is my job as a guru. Rest you don't need. But then you still always need a coach. You want to master music, you will always need a guru. You will know every sphere. Same is that also. Despite the books existing, this is again ये misnomer आ गया. This book is the final. वो हमेशा है भी तो go back. Go back. मेडिकल कॉलेज में जब जाता है बच्चा तो बुक में दिखाते हैं और स्कूल में, कॉलेज में, साइंस में पढ़ाते हैं. देन दे टेक यू टू द लैब. नाउ सी फॉर योरसेल्फ. जो बुक में लिखा था सही है कि नहीं बेटा, देख ये डाला हमने केमिस्ट्री लैब में, ये हुआ, बॉयल हुआ. दैट इज व्हाट वाज रिटन इन द बुक. सी फॉर योरसेल्फ, एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो डील करना, तो एज आई टोल्ड यू, सम पीपल आर मास्टर्स. दोज पीपल हु न्यू दैट मुझे नहीं समझ में आएगा, दे ऑलवेज इन सर्च ऑफ दोज मास्टर्स. कौन मुझे समझाएगा? So that is why Vivekananda set out to find as to who can explain me. And after meeting so many gurus, he came across Ramakrishna Paramahansa. ये मुझे समझाएगा. जी. मेरे में सामर्थ्य नहीं है. He knows it. And that is why the entire mankind हमारे यहाँ पर था कि कोई महंत ऋषि आए हैं, वो आए हैं, तो पूरी जनता उनके पीछे पड़ जाती थी. वहाँ पर आए हैं, एक ऋषिवर आए हैं. ऋषिवर, आप जरा बताएं सही क्या है, सत्य क्या है. So our Indian civilization was always a civilization which never believed. It was always in quest, seekers of knowledge. Because- They were not believers of knowledge. It never ended. And I think we still are. We're Yes. still seekers. And Seekers, that's the right way to do it. but Colonel, आपके लिए who has been your guide or your mentor? My mentor has been death. Okay. I was, when I got shot, I knew I'll tell you, I don't know how the great rishis must be feeling at their peak of their spiritual experience. I do not know. But if just presuming that experience at that level, they are one of the things that they the state of mind or whatever they are is that they are detached from every other thing. So if that is what it is, then I've been in that phase for a very small duration. And what were the thoughts in your head at that point of time? I immediately got into a state of mind in which I had accepted that I'm dying. Right. Not that I wanted to die, not that I wanted to live. मेरा डिजायर खत्म हो गया था. अवेयरनेस फुल था. I knew, I was aware of my body, but I was not attached to this body. I knew I have a family, all the worldly things that I have, but I was not attached to them. So, but I was the only one thing that I knew is that कहते हैं हर क्षण का एक सत्य होता है. And in that moment, my job, my duty was to continue to breathe, which was very difficult because the bullet had gone through my throat. It entered here, tore my throat. The jaw came out from here, and it came out. The bullet came out from here. So it was very difficult to breathe. But that's my duty right now.
सिंपल ड्यूटी, कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी दिमाग में मेरे। आई हैव नेवर बीन एज क्लियर इन माई माइंड एज आई वॉज इन दोज मोमेंट्स। देयर वाज नो सेंस ऑफ फियर, नो, देयर वाज नो सेंस ऑफ लॉस कि मेरी कुछ नहीं, फैमिली का क्या होएगा, या नहीं, जो you feel that your life is flashing through your नहीं, वो बाद में आता है, वो बात आई टेल यू दैट ऑल्सो। बट उस मोमेंट में व्हेन आई फेल्ट डाउन ऑन द ग्राउंड आई न्यू कि इट्स ओवर। आई एम, मैं मृत्यु के मार्ग पे चल पड़ा हूँ। और मुझे अब बट है ये है कि मेरा काम है कि फिर भी परिणाम इधर हो उधर हो क्या करना, राइट? बट आई नीड टू कीप, यू नो, doing my job is to keep breathing hard. Is something like, you know, even if you know that you're going to lose the match, batsman still feels कि यार मैं आया हूँ pitch पे तो I'll keep trying. keep playing. There are 400 runs to be scored, 2 days to go, and I am the ninth wicket. But still my duty is to keep trying. I know we'll lose, but मैं तो आया हूँ तो यार मेरा कर्म है ना, करना पड़ेगा। मेरे से जितना हो सकता है मैं रोकूंगा। दैट इज वॉट इट इज। सो ही इज जस्ट गाइडेड बाई दैट मोमेंट कि इस क्षण का सत्य ये है, इस क्षण का मेरा दायित्व ये है। वो ये नहीं सोच सकता यार 9 विकेट डाउन, 400 रन टू गो, 2 days टू गो, व्हाट इज द पॉइंट यार, मैं चल ही लू नहीं ना। इफ इज अ ट्रू क्रिकेटर ही विल स्टिल सी व्हाट बेस्ट ही कैन डू। सो दैट इन दैट सेंस द इवन इफ आई एम गोइंग टू डाई माय जॉब इज टू कीप ब्रीथिंग। ये मेरे को इस वक्त मेरा दायित्व है। सो दैट आई केप्ट डूइंग एंड देन आई वाज पिक्ड अप एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। एंड बीच में कई बार लगा कि आई विल गो। सो एज ए टोल, पहली बार तो वहीं लगा ज़मीन पे कि आई विल गो, बट देन आई फेल्ट कि समवन इज पिकिंग मी अप, यहाँ हाथ डाल के उठा रहा था। मैंने कहा यार शायद चांस है। सो देन दे पुट मी इनटू अ व्हीकल, बुलेट प्रूफ व्हीकल विच इज़ काइंड ऑफ क्लोज फ्रॉम ऑल अक्रॉस। सो दिस साउंड प्रूफ टाइप होता है वो, एंड इट्स नॉट मेड फॉर कंफर्ट। So obviously bulletproof, mindproof गाड़ी है, it's not made for comfort. So I but उसमें भी थोड़ी देर बैठा मैं, then I felt कि यार अंदाज़ा लगाया मैंने 1.5 घंटा 2 घंटा तो लगेगा ही। आई न्यू हाउ फार श्रीनगर इज, इतना तो नहीं खींच पाऊंगा एंड ऑल। सो मन में मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स लीव इट। द मोमेंट आई थॉट द डोर ओपन एंड आई कुड हियर द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर का रोटर ना। और मैं कहा यार रुक जा थोड़ा सा। सो दे पुट मी इनटू दैट। सो द हेलीकॉप्टर टुक ऑफ, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। बट उसमें मेरे साथ भी बंदा था, वो भी बैठा, जब ने मेरे को उठाया तो वो भी बैठा था। तो आई वाज जस्ट लाइंग लाइक दिस एंड मैंने कहा पता नहीं यार इसमें भी कितना टाइम लगेगा यार, नहीं होगा। एंड ये आपके दिमाग में चल रहा है कि इतना टाइम लगेगा, मतलब मैं, निकलेगा। मेरा सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान है कि मुझे राइट। सांस लेते रहना है। फिर बहुत मुश्किल हो रही थी, मैंने कहा यार अब नहीं ले पाऊँ, छोड़ देता हूँ। सो द इट इज एज इफ द पायलट हु heard what I was thinking. So he turns back and shouts, look, BB can't, BB can't, BB can't, पीछे मुड़ के ना। तो आया तो ऐसे सब पार किया हुआ था मैंने। आई जस्ट टर्न माय आईज लाइक दिस एंड आई कुड सी दैट हेलीपैड, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर पे बंदे लेके खड़े हैं। मैंने कहा रुक जा चांस है पकड़ लेता हूँ। देन आई वेंट इन एंड देन आईसीयू में गए एंड ऑल। आईसीयू में दे डिड व्हाट इट इज, देन आई डोंट नो वेदर आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस ऑन माय ओन और दे मेड मी लूज इट, आई डोंट नो। उसके बाद ऑपरेशन हुआ होगा, लंबा चला। आई वाज लेटर टोल्ड लॉन्ग वन इट हैपेंड। And then when I came back again into consciousness, I was on the life support system. All those gadgets were all around me, the pipes and all those oxygen pipes and all. But I was not able to move anything. Right. I was not able to move even a finger. Which भी नहीं कर सकता था, एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकता था, बोलने की तो बात ही नहीं थी। तो I just lying down and then I started losing breath again. For some time, not immediately. मतलब थोड़ी देर तो मैं देखता रहा हो रहा है ये सब। Then I don't know what time का मुझे याद नहीं है, but I started losing breath again. But I can't tell them. I can't even say like this. You know, जैसे वो मूवी में दिखाता कुछ ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कुछ नहीं, बट आपका माइंड चल रहा है, यू हाँ, कैन ब्रीथ। सांस तो आ नहीं रही। जी। तो मैं कहा यार अभी तो क्या करूँ मैं। तो देन सडनली स्टक मी कि यार प्रीवियस जितने भी बार मैं जा रहा था, तो आई वाज नॉट रिमेम्बरिंग, मैं भगवान को याद नहीं कर रहा था। मैंने कहा गुड यार, अभी इस बार याद आ गया। सो मैंने शंकर जी को याद वाद किया, जो छोटा मोटा जो भी आता था। चलो गुड, नाउ सेटिस्फाइड, नाउ आई एम गोइंग राइट। अब मैंने भगवान जी की भी प्रार्थना यार कर ली है। फैसला कर ली यार, ये तो याद आ जाए, ये बड़ी बात है। मैं बता रहा सारे सुनने वालों को, आखिरी मोमेंट पे ये याद आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा यार पिछली इतनी बार भूल रहा था, इस बार याद आ गया, अब चलता हूँ। तो मैं ठीक है,
उसके बाद मैं आई न्यू, मतलब मैं डेथ ही है वो, एंड आई न्यू गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे को फिर चेतना आई होगी, तो आई न्यू कि मैं तो मर तो गया ही हूँ, अब ऊपर आ गया हूँ। So you had thought कि अब मैं हाँ, अब जब दोबारा विचार चलना हुआ तो मैंने कहा अब ऊपर आ गया हूँ, और अभी मेरे बगल में यमराज खड़े होंगे, अभी देखूंगा तो, और सामने चित्रगुप्त बैठे होंगे, और वो रजिस्टर खोल के बैठे होंगे। और अब यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, जितने सुनने वाले हैं ध्यान से सुन लेना मेरी बात। तो मैंने जैसे ही देखा चित्रगुप्त, मैंने सोचा अभी चित्रगुप्त बैठे होंगे रजिस्टर खोल के, और ये मेरे से सवाल पूछेंगे, तो सारे उल्टे काम याद आते हैं। और मैंने कहा यार इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब है, इसका क्या उत्तर दूंगा। मैंने कहा फंस गया भाई ये तो। मैंने कहा यार इसको बोलूंगा तो बंद कर यार, मेरे को वैसे ही नर्क भेज देता हूँ मैं, क्या ये सब सोच रहा हूँ मैं मन में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा हूँ सभी के लिए। ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपना क्वेश्चन पेपर चाहो अभी तैयार कर लो पूरी जिंदगी का, वो काम ही मत करो जो वहाँ जवाब देना मुश्किल हो। और एक हम में से कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, सोचते हैं आई एम टू गुड बिकॉज वी बीन एबल टू मैनिपुलेट आवर वे इन लाइफ, right. यू नो, बाय यूजिंग आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, पावर, मनी, दिस दैट, एंड वो थोड़ा सा गुमान होने लग जाता है कि आई कैन हुडविंक। ऊपर कुछ नहीं चलेगा। आपके ग्रेट, यू में बी द ग्रेट ओरेटर और ग्रेट लिंग्विस्टिक्स, भाषा ही नहीं है ऊपर, आपको कुछ नहीं चलने वाला, स्ट्रेट सामने आपको दिखेगा, एंड हैव नो, देयर विल बी नो कन्वर्सेशन, दिस इज व्हाट इट इज। पूरी दुनिया में बेवकूफ बना सकते हो आप किसी का, ऊपर नहीं बना पाओगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर अभी से अपना बना लो खुद का, कि क्या क्या ऊपर पूछा जाना चाहिए वही काम करना। ऐसा कोई काम ही ना करो जो सामने ऊपर पूछेगा जब तो उसका जवाब ना हो। Uh, दिस इज वन, ओनली वन लेसन इफ एवरीबडी कैन टेक फ्रॉम हियर, दैट विल बी, आई विल बी देन हैप्पी। सो बट देन मेरे को फिर याद आया एक और बात, कि यार वो कहीं सुना था मैंने, कि यार वीर गति को प्राप्त होते हैं वो तो स्वर्ग मिलता है। मैंने कहा यार अपना तो ठीक है यार, फिर तो हम तो वीर गति के रास्ते आ रहे हैं। फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने कहा आप चौड़ा हो गए, मैंने कहा अब तो वीआईपी पास है, बोलूँगा खोलो बंद करो रजिस्टर, ये रहा वीआईपी पास, स्वर्ग की एंट्री। विद दिस कॉन्फिडेंस नाउ आई एम ओपन माई आईज, एंड टू माई utter disappointment even till today I was still lying on the bed. मैंने कहा यार ये टेक ऑफ ही नहीं हुआ मामला। आज तक पश्चाताप है बता रहा हूं मैं, दैट आई डिड नॉट डाई वाज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। अब अभी यार कर्म करके जाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है ये, वो बड़ा शॉर्टकट में मिल रहा था। भाई ऐसा तो है नहीं, सम पीपल तो किस्मत है बच गए, मैं कौन सा अमर हूं, ये एक और गुमान है ना लोगों को। मृत्यु खाली स्वीकार करना है ना सब लोग एक बार, कि हमने जाना है, ये जानते सब है, मानता कोई नहीं अंदर, अंतःकरण में कोई नहीं मानना चाहता इस बात को। तो ऐसा तो नहीं कि मैं बच गया तो अब मैं अमर हूं, जाना तो है ही, और जाना है तो यार उससे बढ़िया रास्ता तो कोई था नहीं। दैट इज अ बेटर वे ऑफ गोइंग, I would have rather gone that way than this. No, we're so happy that you're still here to give us all these lessons that are so, so valuable. तो वहां से देन व्हेन आई केम आउट आई न्यू कि आई हैव सर्वाइव्ड एंड ऑल। सो वो जो मैंने बताया कि मैं थोड़ी देर के लिए उस हाई जोन में था, वो जब वापस दुनिया में आया तो आई एम नो डिफरेंट, वापस माया मोह जैसे था चढ़ गया है, आई एम जस्ट एज ऑर्डिनरी एज एनीबडी हियर। बट ये है कि मेरे पास एक वो रेफरेंस पॉइंट है ऑफ व्हाट इज दैट हाईएस्ट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल स्टेट। एक जो होता है ना, इज जी समथिंग लाइक फिजिकली हेल्थ, यू मे बी प्रोबेबली रिमेम्बरिंग सम डे आपने कोई एक्सरसाइज की होगी एंड यू मस्ट हैव फेल्ट टू गुड दैट डे, यू नो, हेल्थ आपको वाइज। पता है कि what अब it आज आप felt नहीं हो, like, right? बीमार नहीं हो आप, बट स्टिल यू नो कि यार वो वाला तो लेवल नहीं है। दैट डे इट वाज सो ब्लेस, आई फेल्ट लाइक क्या करूं, मतलब यू कुड हैव गॉन फॉर अ रन और समथिंग, एंड यू मस्ट हैव, आई डोंट, इफ यू रिमेंबर, इफ यू आप ध्यान कीजिएगा तो आपको एक कोई दिन याद आएगा कि दैट डे आई फेल्ट लाइक, वो मैंने क्रॉस कंट्री दौड़ी थे, मैराथन दौड़ा था, उसके बाद वे आई फेल्ट वाज काइंड। टुडे आई एम नॉट दैट वी आर सिक टुडे, बट या वो वाली बात तो नहीं है, मे बी विल नेवर बी देयर, बट दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। So similarly, for me, that state of mind in which I was absolutely detached and in that bliss is my reference point. Is the only difference probably I feel between
a lot of others and me. Otherwise, right now I am as मोह माया मोह जितना सबका है. But I have experienced that. You know, what's very interesting, Colonel, is this, failure or loss or trauma uh, often teaches you a lot. जैसे आपने, like Before you facing, progress on this, I don't consider it trauma. You don't consider it failure. no, This is the most blissful experience I've been in my life. इससे बढ़िया सुंदर मेरा कोई अनुभव नहीं रहा जीवन में. martial arts में बोलते हैं कि, the more you break, the stronger you become. Every time you go through some kind of problem or fault, you're actually coming out stronger. लेकिन हम फेलियर को या हम we avoid any difficult situations, हम दूर भागते हैं. But this is almost as if this was a pivotal point in your life Yes, where yes, you can actually grow from and learn from. yes. And you've transformed your life after that because that fear of death is, I think, gone away. You see, नर्सरी स्कूल में यू मस्ट हैव सीन ना, एक कोट लगा रहता है दीवार पे, ट्रुथ इज लव. मस्ट हैव हर्ड दिस. वेरी सिंपल Right. कोट है, लिखा रहता है ट्रुथ इज लव. बुक में कहीं कहीं छोटे क्लास में 1-2 में ही मैंने देखा था, कहीं पर उस मेरी स्कूल में लिखा था. एंड राइट नाउ with ordinary level of intellect, presuming, I'm not undermining you, but presuming we are very, very ordinary level of intellect, what is that one truth which is bound to happen? Are we sure of seeing tomorrow's sunset, sunrise? Maybe. Who knows? If you aren't even sure, maybe we are sitting here, maybe अभी 1-1.5 घंटे हैं सूर्य अस्त होने में. Are we sure we're going to be alive till that another 1.5 hours? If there's one thing which is bound to happen, That is death. death. It's even greater truth than the next sunrise, the next sunset. Whatever you think is going to happen, उससे ही बड़ा है ये. So if death is one with the ordinary, there are so many truths. मैं एक बात कर रहा हूँ साधारण इंटेलेक्ट, ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट जो हमारे हैं, उसके हिसाब से एक चीज की गारंटी है, वो है मृत्यु. Death is a truth. Guaranteed. So if truth is love and death is a truth, should not we start loving death? I'd love to, Colonel, talk a little bit about, leadership. Hmm. And, you went through this injury. Hmm. You couldn't speak Hmm. after that. Lekin I think as a leader, you still needed to make a lot of crucial decisions. Hmm. लेकिन उसमें आपकी आवाज़ नहीं चल रही थी. But I think, even when your voice is not working, as a leader, it's about how you are, how you act. And especially in your darkest moments, जो आपके actions होते हैं, वो, define करते हैं आपकी leadership. Hmm. So, what were the tools that you were able to use to lead, when you didn't have your मेरी बात एक voice? बात बताइए, what do you understand by leadership? Sorry, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ. No, but I think for leadership is the ability, not the ability, it's the ability to guide people around you towards a larger purpose Mhm. or a common shared goal. Okay. This question started hounding me again, before I come. Once I survived, then when I came back to this world, what I began to understand is that, yaar, whatever I've been made to understand so far in my life, not all of it is right. And the great books and the great wise people are been speaking like this. तो मेरे को ये नहीं पता था सही क्या है, बट ये समझ में आने लगा था ये तो सही नहीं है. जस्ट लाइक ये दैट एग्जाम्पल ना कि यार ये दवा डॉक्टर दे रहा है, ये पता नहीं ठीक तो नहीं हो रहा हूँ, तो ये दवा तो ठीक नहीं है. सही क्या है मुझे नहीं पता. Leadership was one of them, of so many other things. So I was always going through so many definitions of leadership, हर book में इधर उधर, and जी. heard some great speaker, and every time I felt yes, yes, yes. But then I pondered about it for some more time, and then I felt कि यार ये भी incomplete है. Every great definition that I came across, I was very happy. Yeah, ये सही मिल गया. But then I kept pondering, and then I go, this is not also right, यार. No, I'm not saying wrong है, but complete नहीं है. So if only, for example, a lot of corporate talks and all, people say leadership means you need to have a vision, you need to have a
ability to lead people, inspire people to a shared purpose, like something like shared goal. You too said you should be a great communicator, you should be a great team builder, and you should be able to have uh, uh, give a very clear directive to people so that there's no confusion on all those things, and you should be able to check back, set goals, targets, whole lot of things. इनके ऊपर volumes and volumes have been books have been written and spoken about it. Okay, this is what is leadership. If this is what is leadership, I'm not telling it is wrong, but if this is what is leadership, if it defines, then Dawood Ibrahim is a great leader. He does all those things. He But sets targets. he He sets builds a targets. great I mean, that community. way Hitler, Yeah. or he Yes. was also a great Yes. leader. You know, they have also done. They've all done those They've things. all they've all done good Yes, stuff. they've all done those things. And even my counterinsurgency experience, I Absolutely. used to at times admire a terrorist leader. जी. यार वो जंगल में बैठ के बंदा पूरी तंजीम कंट्रोल कर रहा है पूरे कश्मीर में यार. He can't walk as freely as I am. मेरा काफिला चढ़ता है, सामान आता है, सब कुछ आता है, like I'm doing everything openly. I can assemble my men, pass orders, communication. He is sitting alone somewhere with 4-5 people somewhere in the jungle and other पूरा people. उसने पूरा कैसे कर रहा होगा ये? So I used to admire his leadership. So ultimately, let me tell you, give me one. Uh, I continue to refine my definition, but as of now, my leadership definition is, थोड़ी देर पहले हमने बात करी understanding of the cosmic law, which is called dharma. So leadership is your leader is the one who himself or herself walks the path of dharma and makes others walks the path of dharma. That's it. As of now, I feel this is a complete definition. Beautiful. As of now. Now dharma has to be every organization का break करना पड़ेगा. जी. और जैसे मैंने कहा ना, जी. जैसे हमारे ऋषि मुनि ने बोला धर्म समझ गए, तो फिर उन्होंने हर एक का अलग अलग धर्म बना दिया. छात्र धर्म, शिष्य धर्म, पिता धर्म, पुत्री धर्म, है ना, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, उसके अंदर सबका धर्म अलग अलग कर दिया. सो वेयर यू आर, यू आर सोल्जर, यू आर कॉर्पोरेट में हो, आप बिजनेस में हो, आप उसके अंदर का वो स्मॉल निकाल के अपना वो पकड़ लो. दिस इज व्हाट इज योर धर्म. यू अराइव एट दैट धर्म, you follow that, make everybody else follow. That is leadership. As of now, I feel this is a complete definition. I don't know whether you can find it in any book or not. I think it's. Did you find कि जो आपके साथ जिन लोगों को आप लीड कर रहे थे, आपकी टीम में थे, आपके कमांडोज थे, did they follow you? Did Yes. they listen to what you said, or did they follow your actions? इस पे भी डिपेंड करता है कि उनमें से कितने लोग कितने शुद्ध हैं. जी. So most of the people are right. Most of the people are right. So वो सारे के सारे अब तक शायद वो इसलिए भी थोड़े से डिमोरलाइज लग रहे थे कि उनको क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में. बट जब उनको दिखती है कि यार ये बंदा सही है, देन दे डू इट. आप में शॉर्टकमिंग्स होंगे तो भी फॉलो करेगा. आपकी शायद इतने सारे जो हमने बात करें टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेटर, ये वो, उसमें से 2-4 चीजें नहीं भी होंगी, दे विल स्टिल फॉलो यू. ये बंदा जा रहा है, ये बंदा सही है, ही मीन्स दिल का सही है, एंड ही इज कैपेबल एंड इन वेल इंटेंशन गाई, राइटियस गाई. बाकी सारे जो क्वालिटी में हम जितने लिखते हैं उसमें से 2-4 कमी भी हो जाएंगी, दे विल कम एंड डाई फॉर यू. ऑलवेज कम एंड डाई फॉर यू. I hear this a lot, Colonel, of, in the army where Yes. people are ready to die for each other. Yes. या, अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं. ये नॉर्मल अगर हम लाइफ में देखें, सिविलियन लाइफ में देखें, तो कोई एक पेन नहीं लेंड करेगा. लेकिन आर्मी में पीपल आर रेडी टू गिव देयर लाइव्स फॉर ईच अदर. व्हाट इज इट अबाउट द आर्मी जिसमें आपका इस लेवल की कमिटमेंट होती है फॉर ईच अदर? आर्मी में क्या है ना, वी आर डीलिंग विद बैटल्स. राइट. बैटल्स में क्या होता है कि आपके इल्यूजन्स टिकते नहीं है. बाकी फील्ड ऑफ लाइफ में यू सी वी आर सो वेरिड इन आवर ओपिनियन. चारों तरफ अब बहस ही पूरी जिंदगी निकल जाती, कोई नहीं मानता एक दूसरे की. जी. माई बिलीफ इज दिस, योर बिलीफ इज दिस, एंड बिकॉज वी कांट रिकनसाइल, सो वी ऑल्सो कम टू दिस पॉपुलर एक आजकल चल पड़ा है, एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हिज ओन ओपिनियन. राइट. And we can live with those different opinions. That's all wrong. We should not be living with different opinions. Right? वो आर्मी में क्या होता है कि आप जाओ, अलग अलग ओपिनियन लेके जाओ,
पहली गोली चलेगी, सारा ओपिनियन गायब हो जाएगा, राइट? वी से इन द आर्मी, the first thing, the first casualty, once you walk into a battlefield, the first casualty is your plan. Wow. Before anybody else gets hit, it is your plan which gets hit. That means your illusion is shattered. Right. So when you're dealing with battles, आपको illusions, we are also humans, थोड़ा सा आता है, but जैसे ही वो जाएंगे, it will get shattered. So हमके लाइन पे illusions, जब illusion नहीं रहता, most of the time we are truthful. We got to be truthful. Thank you so much, Manoj ji. I think this has been so enlightening. And really, I think ये जो insight आपने दी है behind actually terrorist के mind में क्या चलता है, क्या narratives वो create करते हैं, and really how we can incorporate in our lives and live एक और better narrative lives. बात कर लेता हूँ मैं हाँ बिफोर जी, वी फिनिश, क्योंकि एक और है, बहुत सारे हैं, बट जस्ट मेरे दिमाग में आ गया, सक्सेस, जी, राइट? जो भी सुनने वाले हैं, एक बात समझ लीजिए आप, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट फर्स्ट जो मैंने बोला था ना, व्हाई जी, आर वी हियर इनटू दिस वर्ल्ड, जी, नो अमाउंट ऑफ योर अचीवमेंट इज सक्सेस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियर। कुछ भी अचीव कर लीजिए दुनिया में, होता है ना अवार्ड फंक्शन में, वी गॉट सम ग्रेट सक्सेसफुल पीपल हियर एंड देयर एमसी स्टार्ट्स अनाउंसिंग दिस, लुक एट हिज अचीवमेंट, ही अचीव्ड दिस, ही इसको अचीव्ड ये दैट, award मिला, इसको ये मिला है, वो एंड हियर लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव अ ग्रेट हैंड, एंड नो अमाउंट ऑफ अचीवमेंट इज सक्सेस, contribution is success. what are you contributing to the Yes, society, to your community, whichever to way. the people. हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हर व्यक्ति महान बन जाए, जी, आपका एक ही है ना, मैं ये आई एम बीइंग वेरी प्रैग्मेटिक, हर व्यक्ति तो विवेकानंद नहीं बनेगा ना, वो भी मैं नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन चलो हर व्यक्ति, मैं भी नहीं, मेरे मनोज कुमार भी नहीं बनेगा। मैंने कहा किसी को तो करो, देश का सोचा, नहीं हो रहा, इतना महान नहीं हूं मैं, समाज सोच लो, नहीं हो रहा, इतना महान भी नहीं हूं यार, परिवार सोच लो भाई, उसमें ही जियो, आई मी माई सेल्फ नहीं है, ये मेरे परिवार है, आपके लिए क्या करूं, आपके लिए क्या करूं, आपके लिए क्या करूं, आपके लिए क्या करूं, हम यहाँ पर कमरे में 5 बंदे हैं, मैं परिवार का 5 चारों में, मैं आप चारों के लिए क्या कर सकता हूं, इतना तो करो कि मैं आप चारों के लिए जीना चाहता हूं, हम 4-5 लोगों का परिवार है, मैं आप चारों के लिए पूरा जीवन समर्पित करना चाहता हूं, इतना तो करो, ये भी नहीं करोगे। एंड कंट्रीब्यूशन, अगर आप काम कर रहे हो, कस्टमर, मतलब अगर आप रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हो तो भैया खाना ही अच्छे से सर्व कर लो। जो काम करो अगर उससे मन से करें कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी जो यूजर्स काम हैं, नहीं, धर्म वो संगत काम, वो तो शराब की दुकान वाला भी तो मन से शराब पेश कर सकता है ना, धर्म, शुरू में बताया ना, कॉस्मिक लॉ, उसके अंदर धर्म संगत काम करो, पहली बात, उसमें वो धर्म जो है परिवार से बड़ा होता है, ये भी मैं बता दूं, आई एम स्पीकिंग ऑफ फैमिली वैल्यूज, बट दैट इज बिगर, दैट इज व्हाई बुद्धा लेफ्ट हिज फैमिली, वाज ही गुड फैमिली मैन? नो, बिकॉज he chose a larger purpose, जी, then you can rise above the family. A lot of people who have ignored their family to do something of the nation, किसी ने शादी नहीं करी, किसी ने त्याग दिया, फाइन, मैंने वही कहा, सबसे पहले राष्ट्र चुनो, जी, ना हो पाए समाज चुनो, जब राष्ट्र चुनोगे तो फिर नीचे का छोड़ना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑलमोस्ट लाइक द आर्मी, जब आप राष्ट्र छोड़ते हैं तो फिर या हाँ, आर्मी में जाते हैं, देन यू डू लीव योर यू फैमिली, लीव ए फैमिली, यू डू से अगर बोले नहीं नहीं मेरे रिलेशन, पत्नी को क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, मुझे उनके लिए जीना है, देन यू विल नॉट फाइट ना, यू वोंट फाइट एंड यू वोंट हैव दैट हाँ, देन यू कांट से इज नॉट अ गुड फैमिली मैन, जी, नो। जी, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, वो राष्ट्र, समाज, परिवार, खत्म, उसके बाद तुम नहीं हो, ब्यूटीफुल, आई मी माई सेल्फ पे आने नहीं चाहिए, वोकैबुलरी में हर भाषा से हटा दो इसको, दुनिया में जितनी भाषा है उसमें से आई मी माई सेल्फ, इसके पर्यायवाची इतने शब्द प्लीज हटा दिए जाए। ब्यूटीफुल। आपने चालू उससे किया था, एंड आई थिंक यू हैव टेकन अस थ्रू दिस होल जर्नी yes. व्हिच हैज प्रूवन कि आई थिंक द बिगेस्ट मिजरी दैट वी फेस इज जब हम अपनी लाइफ को आई मी माई सेल्फ yes. बना देते हैं। अपने लिए हो ही नहीं रही, अचीवमेंट करना है, अगेन प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, अचीवमेंट करना है आपको, सो दैट यू कैन गिव, पैसा कमाऊंगा तभी तो सेवा करूंगा, जी, प्लीज अर्न मनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं साधु बन जाओ, एक्वायर, बट यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। आई वाज इन आईआईटी कानपुर एंड आई टोल्ड दोस, थोड़ी देर के लिए उनको थोड़ा सा लगा, मैंने कहा इफ यू थिंक यू गाइस आर सक्सेसफुल, यू आर नॉट, उनको लगा अरे हम आईआईटी कानपुर में बैठे हैं, ये बंदा बोल रहा है हम सक्सेसफुल नहीं है, क्या बात कर रहा है ये,
मैंने कहा अभी तो तुम अपने माता पिता और सरकार के पैसे पे पल रहे हो, तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया है? You have to start giving बट back. हाँ, यू आर इन ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन। यहां से आप निकलने के बाद आपके पास सामर्थ्य होगा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का। सो सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी पे आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। बट सक्सेस तो बेटा तब मानूंगा जब आप actually give back. कंट्रीब्यूट करोगे। Lovely. I told them I couldn't care less. You leave this country and become a CEO of a Fortune 500 company sitting outside this country, and if you are of no good use to this nation, no, I've got no respect. उससे ज्यादा तो सम्मान उस बंदे का करूंगा जिसने ऑडिटोरियम आके साफ किया है। No, I agree. I think what I'm taking back from this conversation, Colonel, is actually a lot more than what I'd started with. I had thought कि हम आर्मी की बात करेंगे, आर्मी स्टोरीज की बात करेंगे, but I think what I've got back is really the truth that we can accept and live life इसके पीछे कारण wherever. पता क्या है? मेरे लिए राष्ट्र आर्मी से बड़ा है, जी. समाज आर्मी से बड़ा है। आप जितने भी सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति मेरे लिए आर्मी से बड़ा है। And thank you so much for your contribution थैंक यू। and giving us these beautiful lessons that धन्यवाद। I'm sure we'll take back. धन्यवाद। So, थैंक यू सो मच। pleasure.